showing what simple basic thing about the UPSC, what you can achieve through this platform. Before that, let's start with a small story. Story of a rickshaw puller and his son Kovi. Actually, it started in Varanasi long back in the year like 1990s. In Varanasi, the rickshaw puller, his son, used to live in a small rented house, which is small as 12 to 8 feet. From there, the poor boy want to do something better in life and to achieve something heights through education or something better in the society. So what he did, he determined at the particular day and he put the focus on everything on studies. He later started UPSC preparation and his father was more supportive in this, where he sold his whole land for his education and sent his son to Delhi. And in the year 2006, every newspaper, in 2006, all the newspapers printed only common single headline that a poor boy, son of a rickshaw puller, cleared the UPSC exam and cracked secured area 48. And this is him at the time of his death. In 2020, he was posted in Arunachal Pradesh. And this is his house. Can you imagine the drastic change in his life? What he achieved after, before UPSC and after he got selected in this. Can you pass it to the next slide? Chief Minister of Arunachal Pradesh called him personally and congratulated him for his work. Can we go to the next slide? So basically, what is UPSC? So UPSC is as simple as a recruiting agency for the government of various civil services. Can we go to the next slide? So before that, you have to know the historical background for what is IAS now. Historically, the collectors were appointed by East India Company who look after the company's affairs for their daily day-to-day collecting tax and etc. So, coming back to the present scenario, UPSC conducts civil service exam every year for just 24 services, where there are 3 all India service and 16 next slide. So in all India service, it comes IAS and forest service. So it's like this. 2 papers are there. One paper is general studies and another is CSIR. Each paper carries 200 marks and you have to do it within 2 hours. And this exam has in this stage you have a negative mark. If you are going to mark a wrong answer, then you will be deducted for 1/3 of the correct answer. That is 33%. So in main exam, it is in descriptive nature. Duration of 3 hours. Total of 9 pages, 9 papers. 2 papers are language. English is compulsory and the other will be any regional language. And 4 general studies, 1 essay paper and 2 optional. And if this 2 optional is not optional, you are not going to eliminate. The optional is you have to choose within the subject order from my life. Don't bog down your feet with burden of marks. Life is much more than board results. Let results be an opportunity of introspection, not for criticism. This is the point we have to take it in mind and take back to our home after this session. And how to read? For you have to check the previous year question paper. These 2 will solve your most like 80% of the burden. Just focus.
get selected in forest service get trained here, and this is the one of the most luxurious and elegant place to get trained. And the next slide, please. He became sub-divisional magistrate. The, like often you see in the YouTube and all, that the power they get, they can change demography. For example, literacy. There is an example from Jharkhand where a lady saw that after the literate people and made a self-help group type and made them to illiterate the illiterate people. So from after that effort, the digital fraud just drastically dropped for more than 40% within a year, for example. So, and what is the highest position in the IAS field? Like you can become a cabinet secretary, which is the topmost position out there. And for example, if you are an IPS, you become a DGP in for example in Bangalore city, you will have for around 1 lakh, like 10,000 1 lakh police professional under you. You have that legitimate power to implement what you have, bring changes in the society. And for example, like being IPS, you can get into various enforcing agent, like other services too. Like after becoming IAS, you can get into ED or CBI and other intelligence agency too. And for a living example, that Ajit Dawal is too was an IAS, and who knows that among you anyone can crack and to become any foreign external minister or anything other country. So this is what, and I was about to tell many things, and due to the you can say the first time experience, I was lost in between many things. I am open to you, and you can ask anything regarding this preparation, or do you want any guidance? I'm almost I entertain you. Thank you. वीडियोस में उन लोगों की बहुत ही मतलब जो उनका एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो आपको सुनने को मिलेगा. सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. बिफोर Vikari has given us one video, so let's listen to him. नमस्कार, मेरा नाम गगन रेबारी है और मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ. आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज मैं आपको सीए करियर के बारे में जानकारी दूंगा. सर्वप्रथम तो मैं रायका शिक्षा जागृति संस्थान को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ये दिशा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया. ये सेमिनार, जैसा कि इसका नाम है, ये स्टूडेंट्स को एक करियर का मार्गदर्शन देगा, फ्यूचर्स का, और एक करियर काउंसलिंग करेगा. सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीए क्या होता है, उसका मेनली काम क्या होता है. सीए का मेनली काम टैक्स कंप्लायंस रिलेटेड रहता है और ऑडिटिंग का रहता है. टैक्स कंप्लायंस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हुआ, जीएसटी रिटर्न हुआ, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आया तो उसका जवाब हुआ, और इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी कंसल्टेंसी हुआ वो हुआ. और ऑडिटिंग का मतलब होता है एग्जामिनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब चेक करना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो वो एज पर लॉ है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, ये गवर्नमेंट का नियम है कि अगर कोई भी खर्चा होता है तो अगर वो 10,000 से ज्यादा है तो वो कैश में नहीं होना चाहिए, अदर देन कैश होना चाहिए. तो सीए ये चेक करेगा कि अगर किसी बिजनेस फर्म की बुक्स में एक्सपेंस है और वो 10,000 से अबव है तो वो बैंकिंग चैनल से हो, ना कि कैश में. गवर्नमेंट का ये नियम है कि कोई भी बिजनेस फर्म जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है उनको कंपल्सरी ऑडिट कराना. और ये जो ऑडिट होती है ये सिर्फ सीए ही कर सकता है इंडिया के अंदर. तो सीए को ये पावर दिया गया है कि वो बिजनेस फर्म्स की ऑडिट कर सके. अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीए कैसे किया जा सकता है. जैसे 10th पास करते हैं स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि क्या सब्जेक्ट्स लिया जाए. जैसे ऑप्शंस होते हैं साइंस मैथ्स, साइंस बायो, आर्ट्स, और फोर्थ ऑप्शन रहता है कॉमर्स. साइंस मैथ्स वाले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाते हैं, साइंस बायो करने वाला डॉक्टर प्रोफेशन में जाते हैं, आर्ट्स वाले सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, और फोर्थ जो कॉमर्स
फील्ड रहता है। इसके अंदर सबसे अच्छा जो प्रोफेशन और सबसे ज्यादा जो जिसका वाइड कवरेज है वो है सीए प्रोफेशन। सीए कैसे की जाती है? सीए करने के दो रास्ते हैं, या तो आप 12th पास करने के बाद कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो इसमें सीए एंट्रेंस टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सीए के जैसे 3 स्टेजेस होते हैं, सबसे पहले सीए एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर सीए इंटर एग्जाम होता है और फिर सीए फाइनल एग्जाम होता है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको सीए एंट्रेंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप सीधा सीए इंटर और फिर सीए फाइनल दे सकते हैं। और वही अगर आप 12th पास के बाद देना चाहते हैं तो फर्स्टली आपको सीए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसे सीए फाउंडेशन कहते हैं। उसके बाद सीए इंटर का एग्जाम होता है 8 मंथ्स के बाद, सीए एंट्रेंस के पास करने के 8 मंथ्स के बाद। और उसके बाद सीए इंटर एग्जाम जैसे आप क्लियर करते हैं, आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल की होती है और ये सीए के अंदर आपको करनी पड़ती है। उसके अंदर जो आपने स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मौका मिलता है और जो भी सीए से रिलेटेड काम है वो सीखने को मिलता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 2.5 साल पूरे होने के बाद सीए फाइनल का अटेम्प्ट रहता है, जो सबसे टफ लेवल माना जाता है। और जैसे ही आप सीए फाइनल क्लियर करते हैं आप सीए बन जाते हैं। सीए करने के बाद सबसे बड़ा सवाल रहता है कि इसका स्कोप क्या है। तो सीए करने के बाद आप खुद का ऑफिस लगा सकते हैं, या फिर आप जॉब में भी जाना चाहे तो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जॉब में आप जैसे बिग 4 कंपनीज ज्वाइन कर सकते हैं। बिग 4 फर्म्स होती है। बिग 4 फर्म्स बड़े बड़े जो भी कंपनीज है उनकी कंसल्टेंसी और ऑडिटिंग करती है। इसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं। एज ए क्रेडिट एनालिस्ट या क्रेडिट मैनेजर आपको लिया जाता है और जो लोन सेक्शन का काम करता है। और इसके अलावा आप कंपनीज, बड़ी कंपनीज में भी एज ए अकाउंट मैनेजर रिक्रूट किए जाते हैं। कंपनीज हुए, पीएसयूज हुए। आप फाइनेंस फील्ड में भी जा सकते हैं, जैसे शेयर वैल्यूएशन हुआ, कंपनी वैल्यूएशन या शेयर मार्केट रिलेटेड। और कॉस्ट मैनेजमेंट फील्ड में भी सीए का वर्क रहता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो मैंने 11th में कॉमर्स मैथ्स लिया था और उसके बाद 12th पास करने के बाद मैंने सीए का एग्जाम दिया था। मैंने सीए के तीनों स्टेजेस के लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है और तीनों लेवल की कोचिंग मैंने जोधपुर से ही करी और कुछ ऑनलाइन मोड में करी है, कुछ ऑफलाइन मोड में करी है। और मैंने अपना सीए फाइनल एग्जाम मई 19 में क्लियर किया था और उसके बाद मैंने बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया। बैंक में एज ए क्रेडिट एनालिस्ट वर्क किया, डिप्यूटी मैनेजर पोस्ट थी। 2 साल वहां काम करने के बाद मैंने वहां से ड्रॉप करके अब करंटली मैं फर्दर स्टडीज कर रहा हूं। ये था मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बता दूं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स सीए क्यों करनी चाहिए। तो सीए का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट्स है ये है कि इसके मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है। सबसे ज्यादा जो करियर रिवॉर्डिंग करियर इसलिए चूज किया जाता है कि भाई इसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं। तो सीए की मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है। एवरेज सैलरी जो स्टार्टिंग एवरेज सैलरी सीए की रहती है वो 5 to 8 lakhs पर एनम एवरेज सैलरी रहती है। इसके अलावा सीए का इंडिया में तो ही, आउट ऑफ इंडिया भी अच्छा स्कोप है। और आप सीए का एक और एडवांटेज ये भी है कि आप खुद का ऑफिस भी लगा सकते हैं। जो चाहे कि भाई मैं जॉब नहीं करना चाहता, वो खुद का ऑफिस भी लगा सकते हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा तो यही है कि ये थोड़ा टफ है। सीए कोर्स करना टफ रहता है। इतना भी टफ नहीं कि कोई रैंकर्स या वही कर सकता है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैंने भी इसे क्लियर किया। लेकिन आपको हार्डवर्क और डेडिकेशन अपने कोर्स के प्रति जरूरी है, तो ही आप इस कोर्स को कर पाएंगे। अब ये तो मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया शॉर्ट में आपको बताने के लिए। और अब मैं अपना सेशन एक कविता के साथ एंड करना चाहूंगा। ये कविता हरिवंश राय बच्चन की है और असफलता से कैसे आप सफलता की ओर जा सकते हैं उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी थी। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। ये कविता इस प्रकार है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना करता है। उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ही नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उसका इसी हैरानी में। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
और लास्ट पंक्ति जो बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनना। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, यूं ही नहीं संघर्षों का मैदान छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विमल जी और उनकी टीम को, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का। और मैं जो स्टूडेंट्स है उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। किसी भी वक्त किसी भी हालात में आपको अपना श्रम कम नहीं होने देना है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ही इज द सन ऑफ अमर सिंह जी आल, विलेज डेगाना, नागौर, presently residing in Jodhpur. Really thank you sir, thank you for your valuable information. The cousin brother of Devji, who had so many adverse conditions in his life, but everything was less in front of his determination. Presently residing in Australia. He has नमस्कार और आप सब ने घना घना राम राम सा। मेरा नाम रेवत राम देवासी या रेवंत देसाई भी कह सकते हैं आप, जो उचित समझे। मैं एक डॉक्टर हूँ ऑस्ट्रेलिया में और मनोचिकित्सक हूँ। ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं। कुलदीप ने मुझे बोला कि आप सभी युवा एकत्रित होकर अपने भविष्य के बारे में विचार विमर्श करें कि आपका भविष्य के शिक्षा और उच्च शिक्षा और कैसे उस रास्ते में कैसे अपने आप को प्रेरित करें। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है मेरे लिए कि आप ये प्रयास कर रहे हैं और अच्छी बात है, क्योंकि आज का जीवन काफ़ी कठिन है और जटिल है कि आगे जाके क्या कर सकते हैं। हालांकि अवसर बहुत हैं, लेकिन उन अवसरों को समझना और उन अवसरों को भुनाना, उसके लिए सक्षम होना, तैयार रहना, वो इतना आसानी से पता नहीं चलता है जब तक आप उस रास्ते से निकल नहीं जाते। तो इसलिए हो सकता है कि मेरा ये छोटा सा परिचय आपके काम आए और जो मुझे समझ है वो मैं आपके साथ बांटूं। मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। हो सके आपको मेरी हिंदी में समस्या नहीं हो समझने में। उच्च शिक्षा का महत्व तो शायद हम सब जानते हैं, लेकिन इतना नहीं जान पाते हैं जब तक हमें व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता है। ठीक है, हम दूसरों को देख के कह सकते हैं कि हाँ इसने इतनी पढ़ाई की, उसको इतना ये ऐसी जीवन है, उसका ये वो है। किसी ने इतनी पढ़ाई की फिर उसका जीवन हो सकता है अच्छा नहीं हो, कुछ मिला नहीं हो अपनी इच्छा अनुसार, तो कह सकते हैं नहीं ये तो उच्च शिक्षा से कोई फ़ायदा नहीं। तो ये कहना बहुत इतना आसान नहीं है कि सब कुछ एक डिग्री लेने से सब हो जाता है। फिर भी इसलिए इसके बारे में गहनता से सोचना, विचार करना ज़रूरी है। तो इसके लिए प्रेरणा कहाँ से आती है, मार्गदर्शन कहाँ से आता है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कठिन है, जटिल है जीवन, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी चीज़ यह है कि हम चिंतन करें इस बारे में, निरंतर चिंतन करें और प्रयास करें। तो उससे क्या है कि आप जहाँ आप जाना चाहें वहाँ पहुँचेंगे, ये मेरा विश्वास है और यही मेरे साथ मेरा अनुभव है एक वाक्य में कहूँ तो। और जैसे हमारे शास्त्रों में भी है कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। ठीक है, तो कर्म करते रहोगे तो फल तो अपना आप उस हिसाब से मिलेगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने शिक्षा कैसे प्राप्त की और मैंने उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त की। हमें ये तो पता है कि मैं छोटे गांव से आता हूँ, हम सब देवासी जो हैं राजस्थान में छोटे छोटे गांवों से ही है। आप शायद सभी ज़्यादातर लोग आप है ना बेंगलुरु में या किसी शहर में जन्मे होंगे और बड़े होंगे, फिर भी आप राजस्थान जानते हैं। आप अपना जो आपके माता पिता, आपके परिवार जहाँ राजस्थान में आते हैं, तो हम जानते हैं कि हम सब छोटे गाँव में इतनी व्यवस्था नहीं होती है और शिक्षा का इतना माहौल नहीं होता है, इतनी परिस्थितियाँ भी नहीं होती है। मेरी परिस्थिति तो बिल्कुल ही नहीं थी। उच्च शिक्षा तो क्या मतलब कि हाई स्कूल तक पढ़ने की भी नहीं थी, 8वीं तक पढ़ने की भी नहीं थी।
क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही उस तरह की शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करती थी। मेरे पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए थे और मैं शायद 5 साल या 4 साल का था, और माताजी भी मैं जब 7वीं में पढ़ता था तो करीब 14 साल का, तो गुजर गई थी। और उनके वो गुजरने से पहले 2-3 साल तक बीमार रही बहुत, और कोई कमाने वाला था नहीं घर में, तो खर्चा उनकी दवाइयों में उनके स्वास्थ्य के लिए होता था और हमें पढ़ाने के लिए होता था। फिर भी वो बहुत ही उनका मन था कि हम पढ़ते रहें, स्कूल नहीं छोड़े। लोग हमें कहते थे स्कूल छोड़ दे, काम कर, तेरी माँ बीमार रहती है। तो ये इन परिस्थितियों में भले ही आपकी महत्वाकांक्षा हो, आपके पास प्रेरणा भी हो, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हो तो आप को बहुत सोचना पड़ता है, और आप ये निरंतर प्रयास करना मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। फिर भी जब माताजी गुजर गए तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था पढ़ने के अलावा। तो ये भी एक कुछ सहयोग कह दो। हालांकि ये बात थी कि काम करना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए धन नहीं था, तो उस परिस्थिति में पढ़ना संभव नहीं था। फिर भी किसी तरह से मैं एक साल करते पढ़ता रहा। पहले नानी के पास गया, फिर मैं किसी के घर पे रह के काम करता था सुबह शाम, और दिन में स्कूल जाता था 10वीं में। फिर इस तरह से मैंने वो टाइम निकाला स्कूल का, और 11वीं पढ़ी मैंने साइंस बायोलॉजी से। किसी ने बोला कि साइंस बायोलॉजी लेके कंपाउंडर बन जाएगा नर्सिंग करके, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 11वीं में बहुत मेहनत करनी शुरू की, और फर्स्ट क्लास पास हुआ, और मेरे लिए एक तरह का निश्चित हो गया था कि मेरा नर्सिंग में नंबर आ जाएगा। तो मैंने आगे पढ़ने के लिए हिम्मत नहीं की। मैंने कहा अब नहीं पढ़ सकते आगे, बस यही रुकना है। इतने में मेरे एक बुआ जी के लड़के थे, वो देवाराम जी डॉक्टर, आप साथ जानते होंगे। उन्होंने सुना कि मेरे अच्छे नंबर आए 11वीं बायोलॉजी में, तो मैं क्यों नहीं डॉक्टर बनूं। तो मेरे पास आके बोला उन्होंने कि तो PMT दे, जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता था उस टाइम, कि तेरा हो जाएगा, तो पढ़ने में अच्छा है, तेरे नंबर अच्छे हैं। तो मैंने जब समझा कि हाँ इस तरह से टेस्ट देने से डॉक्टर में नंबर आ जाता है, तो मैं उसमें लग गया। और आर्थिक व्यवस्था तो बहुत ही कठिन थी, फिर भी किसी तरह से टाइम पास करते करते पढ़ाई की। मैं बीमार हो गया 2-3 साल तक बहुत बीमार रहा। मेरे पेट का ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, तो बहुत बीमार रहता था, पढ़ाई कर नहीं पाता था। फिर भी उस कारण फिर मैंने नर्सिंग में चला गया 1989 में, कि नर्सिंग करता रहूँगा, और जब मैं कोशिश करता रहूँगा MBBS में जाने की। फिर मेरी एक इमरजेंसी सर्जरी हुई और पेट ठीक हो गया। उसके बाद 1991 में मेरा MBBS में नंबर आ गया, और फिर MBBS करके मैं दिल्ली चला गया 1997-98 में, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि मुझे इंग्लैंड जाना है। तो मैंने राजस्थान में काम नहीं किया, दिल्ली में काम किया, अपोलो और हॉस्पिटल में और सफदरजंग में कुछ काम सीखा, कुछ पैसे इकट्ठे किए जाने के लिए, और फिर मैं इंग्लैंड में जाके मैंने जो इंडिया में MD होती है उस हिसाब से वहाँ MD की मनोचिकित्सा में, और फिर DM की मनोचिकित्सा बच्चों की और किशोरावस्था में की उम्र के लिए, तो वो किया। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे नौकरी की और फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो कहने का ये है कि ये सब एक लंबी यात्रा थी, उसमें बहुत सारी कठिनाई आई, और कई बार आई, और कई बार तो ऐसी कठिनाई आई कि कई दिनों तक भूखा रह के सोता था, क्योंकि पैसे नहीं होते थे सामान खरीदने के लिए, खाना बनाने के लिए। मुझे याद है मैं जब BSc करा था ब्यावर में, तो गर्मियों की छुट्टियां थी, कहीं जा नहीं सकते, जाओ तो किराया लगता है, और अपने कमरे में बैठा था, और आटा दाल सब ख़त्म हो गए थे, तो 2-3 दिन ऐसे ही निकाले। और एक बार MBBS करा था, तब मैं हॉस्टल में था, और सब वहाँ पे जो गर्मियों की छुट्टियाँ थी सब लोग चले गए थे, हॉस्टल की कैंटीन बंद हो गई थी, मेस, तो खाना कहीं था नहीं और पैसे नहीं थे, तो दिन में ऐसे ही सो के टाइम पास होता था कमरे में भूख में। तो इस तरह से कई सारे ऐसे बाधाएं आई, बहुत सारी हैं जो सब नहीं बता सकता मैं यहाँ,
लेकिन उन बाधाओं ने अड़चने ऐसी नहीं डाली कि मैं रुक जाऊं, क्योंकि प्रेरणा थी मेरे पास। प्रेरणा मुझे जैसे भी मिली, लेकिन मैं उस धुन में था कि मुझे ये करना है। ठीक है, तो जब आप में मन स्थिति, आपकी मन स्तर हो जाए, मन स्थिति साफ हो जाए कि आपको क्या करना है, तो सब कुछ शायद संभव है। तो अब आप सबके लिए व्यक्तिगत रूप से आपके लिए क्या उचित होगा, ये तो आप जो जब प्रयास करेंगे और जानेंगे और देखेंगे क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या उपलब्ध है, क्या संभावनाएं, तब साफ होता रहेगा। जरूरी नहीं सबको डॉक्टर बनना है, बहुत से हो सकते हैं और भी काम। अगर बिजनेस भी करना है तो भी आप आगे ऐसी पढ़ाई करो जो आपके बिजनेस में और ज़्यादा आपको सक्षम बनाए। तो यही कहना मेरा कि कठिनाइयाँ कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्रेरणा और महत्वाकांक्षा और परिस्थितियों के को देखकर आप अगर निर्णय लें और आप लोगों से एक सलाह भी लें, और अगर आपको कोई और विशेष सलाह चाहिए तो उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं कभी भविष्य में। From Adi Chunchungiri Medical College. So, as he is a student of Sri Mahendra ji, I would request Sri Mahendra ji to put some few words about her on the stage. ये मेरी स्टूडेंट है 12th, दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन। बनना है तो बनना है। उसका एक साक्षात उदाहरण है, शी वाज लेटर बैक, शी कुड नॉट मेक इट आयुर्वेदा, थर्ड ईयर एमबीबीएस इज डूइंग। ओनली वन थिंग शी हैड दैट व्हेनेवर आई से दैट कोमल कैसा लग रहा है, बोल सर जैसा भी लग रहा है, बस डॉक्टर बनना है। इफ यू आस्क एनीथिंग फ्रॉम हर, आप लोग सही में विश्वास नहीं करोगे, जब भी कोमल को मैंने अपनी पढ़ाते टाइम में बोला कोमल कैसा लग रहा है, सर सब बढ़िया है सर, डॉक्टर बनना है सर। जब ऐसा आदमी डिसाइड करेगा तो बनेगा बनेगा, करेक्ट ना? तो उससे बात हुई, शी वाज एट द एंड, एवरीथिंग वाज डन दैट शी विल कम, बट टुडे शी इज हैविंग प्रैक्टिकल एग्जाम एंड बिकॉज ऑफ दैट शी इज अनेबल टू बी हियर। सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर बालाराम जी हियर। इनके लिए मतलब आप एक चीज़ मानो कि ये पीनिया में रहते हैं। कहाँ पे? पीनिया में। और पीनिया से इन्होंने अपनी बच्ची के लिए एक हॉस्टल चूज़ किया बसवेश्वर नगर में, घर से 5-7 किलोमीटर दूर। वो होता है कि अपनी बेटी या बेटा को कुछ बनाने की जिद कि सर जो करना है करो, लेकिन बेटी को बनाना है। और फाइनली समथिंग 2 या 3 महीने वो उस पीजी में रही और हम लोगों ने जाके वो पीजी देखा। तो इतना इजी नहीं है कि आप यहाँ लोगों के बीच में उनका खाना खा कर के भी जीना है, लेकिन जीना है मतलब कुछ करना है। और फाइनली सब हुआ और आगे जाके उसका रास्ता बहुत क्लियर है, आगे बहुत स्कोप है इस फील्ड में। ओके, तो प्लीज मिस्टर बालाराम जी। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। ये एक बहुत बड़े उदाहरण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप ही के बीच में से एक व्यक्ति है और मैं इनको फेलिसिटेट करने के लिए बुलाना चाहूँगा विनोद जी को। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग बहुत बढ़ चढ़ के आए और आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणा दें। I'll just give brief introduction about Sri Bhairaram ji, a very young epitome. सभी को मेरा नमस्कार। मैं भैराराम देवासी, प्रेजेंट पटवारी जोधपुर, एक्स बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, पीएचडी स्कॉलर मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी उदयपुर। प्रिय मित्रों, जैसा कि आज इस प्रोग्राम के नाम से हमें पता लग रहा है कि दिशा एजुकेशनल सेमिनार 2023, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमें परफॉर्मेंस भी करना है कि दिशा हमारे समाज के जो बच्चे हैं जानकारी के अभाव के कारण वो अच्छी जगह नहीं पहुंच पाते हैं। इसी की दिशा में मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं आपको आज बताऊंगा कि प्रोफेसर कैसे बनना है, जिससे हमारे समाज का सर्वांगीण और समावेशी विकास हो सके। समावेशी विकास यानी ऐसा विकास जिसमें गरीब तबके को भी इसमें फायदा मिले।
सरकारी प्रोफेसर क्या होता है? प्रिय मित्रों, जो कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो टीचर्स होते हैं उनको प्रोफेसर कहते हैं। इसमें सिलेक्शन के लिए हमें यूजीसी नेट, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, और जो साइंस बैकग्राउंड से उनको यूजीसी CSIR नेट क्लियर करना होगा। उसके उपरांत आप प्रोफेसर के एलिजिबल हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पहले आप 12th करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में आप कुछ सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट BA करते हैं और साइंस के स्टूडेंट BSc करते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप MA करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तो उस समय UGC नेट का एग्जाम दें, जिससे आपको पेपर का पैटर्न पता लगेगा। जैसे ही आपका MA या MSc क्लियर होता है, वो एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। प्रोफेसर बनने के लिए आपको पेपर कौन से देने होते हैं? तो प्रिय मित्रों, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप UGC नेट का फॉर्म भरें, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के होते हैं और 100 क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उससे होते हैं। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है। उसमें मेरिट बनती है। जो टोटल कैंडिडेट एग्जाम में बैठते हैं उनकी 6% लोगों को नेट दिया जाता है। और ऑल इंडिया में JRF की सीट फिक्स होती है। जिस बंदे का JRF होता है उस बंदे को सरकार 5 साल के लिए 35,000 पर मंथ स्कॉलरशिप देती है। यदि 5 साल के बाद भी यदि बंदा कहीं रोजगार नहीं मिलता है तो उस बंदे को पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप दी जाती है, जो कि 50,000 पर मंथ होती है। तो कहने का मतलब आपका 7 साल का कैरियर सिक्योर है। फॉर्म कब निकलता है? प्रिय मित्रों, नेट का फॉर्म अप्रैल और नवंबर में निकलता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हैं। वो फॉर्म भरें और उसकी फीस 500 से 1100 तक होती है। उस फीस को भरकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके उपरांत आप एग्जाम दें और एग्जाम यदि आप मेरिट में आते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई माना जाएगा। और नेट होने के बाद आप ऑल इंडिया में कहीं भी प्रोफेसर का इंटरव्यू और एग्जाम दे सकते हैं। नेट क्लियर होने के बाद आपका PhD में एडमिशन आसानी से हो जाता है। यदि PhD में आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपका प्रोफेसर बनना और आसान हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न क्या है? प्रिय मित्रों, अलग अलग राज्य में प्रोफेसर का अलग अलग एग्जाम होता है और कुछ यूनिवर्सिटी सीधे इंटरव्यू लेती है। इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। और एक आपको मैं यूट्यूब चैनल सजेस्ट करना चाहूँगा, DKT दिल्ली नॉलेज ट्रैक चैनल को आप फॉलो करें। उसमें हर एग्जाम के बारे में आपको ढंग से बताया जाएगा। और प्रोफेसर के एग्जाम में एक पेपर GK GS का होगा और बाकी जो क्वेश्चन है ज़्यादातर आपके स्पेशल एक सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा कोई समस्या वाली बात है नहीं। सैलरी कितनी मिलती है? प्रिय मित्रों, यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो उससे पहले सबसे पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाएगा। उसमें आपको 80,000 सैलरी मिलती है। उसके उपरांत आपका प्रमोशन होता है, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, जिसमें 1 लाख से 1,25,000 तक सैलरी होती है। और जब आप प्रोफेसर बनते हैं तो आपकी सैलरी 1,50,000 से 2 लाख तक होती है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी यदि स्कूलिंग अच्छी जगह से या अच्छी विश्वविद्यालय से होती है तो आपका आगे बढ़ने का कैरियर और आसान हो जाता है। जैसे अभी एक CUET एग्जाम होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन का टेस्ट है। जो 12th जो बच्चे कर रहे हैं उन बच्चों को ये एग्जाम देना चाहिए, जिससे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन हो सके। इससे आपका जो फ्रेंड सर्कल जितना अच्छा होगा, आपके सोचने की क्षमता भी इतनी अच्छी होगी और आप हर एक्टिविटी से रूबरू होंगे। प्रोफेसर बनने के लाभ क्या है? जैसा कि आपको पता है कि प्रोफेसर का पद लाभ का पद नहीं होता है। लाभ का पद का मतलब क्या हुआ कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। यदि आप विधानसभा या लोकसभा का इलेक्शन लड़ते हैं, आप जीत जाते हैं तो लोकसभा और संसद या विधानसभा में जा सकते हैं। और यदि आप वापस नेक्स्ट बार इलेक्शन में जीतते हैं तो आप वापस संसद पहुंच जाएंगे। यदि आप हार जाते हैं तो वापस अपनी प्रोफेसर की नौकरी पे आ सकते हैं। आप किसी भी NGO के सदस्य बन सकते हैं। सरकार किसी प्रकार का कोई बोर्ड गठित करती है, उसमें बुद्धिजीवियों को लेती है और विशेष तौर से इसमें प्रोफेसर को वरीयता दी जाती है। प्रोफेसर बनने के बाद आप
विभिन्न प्रकार की बुक्स लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर छाप सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए प्रोफेसर से मिल सकते हैं, जिससे आपका एक नेटवर्क क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसकी हर व्यक्ति को चाहत होती है। यदि सरकार कोई नीति निर्माण करती है, उससे पहले विषय विशेषज्ञों से डिस्कस जरूर करती है। इसके लिए बड़े बड़े सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, उसमें विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। यदि आपको भी उस क्षेत्र में महारत हासिल है तो आप भी नीति निर्माण में डायरेक्ट भागीदार हो सकते हैं। जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, चाहे एनडीए हो, आरएस हो, आईएएस हो, उसमें प्रोफेसर को शामिल किया जाता है। तो प्रिय मित्रों, ऐसे प्रतिष्ठित पद के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। जैसा ये पद है उतनी इसकी सैलरी भी है, रेस्पेक्ट भी है, और समाज में भी आपको एक अच्छा स्थान मिलेगा। जैसा कि भीमराव अंबेडकर जी ने बताया था, देश के विकास से पहले अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। तो ये एक अच्छा अवसर है कि आप इस एग्जाम की तैयारी करें। इसमें बुद्धि का अच्छे से विकास होता है और आपका सर्वांगीण विकास होता है। इस दिशा सेमिनार 2023 में मुझे बोलने का मौका दिया। महेंद्र जी देवासी और समस्त बेंगलोर वासियों का और समस्त रायका शिक्षा समिति का मैं हार्दिक आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। एक आदमी ने जब पैदा हुए तो भी पाचुंडा कला में हुए और अब रिटायर्ड भी पाचुंडा कला में ही हो गए, लेकिन जिंदगी का एक ही मोटिव 11 डॉक्टर बनाना है। सोचो, पाचुंडा कला is the only village where 11 doctors, like out of 11, he have till now made the 9 and he is very much determined that remaining 2 also will make. बोले मरने से पहले 2 और करके जाऊंगा। तो आप सोचो, आज भी वही तरीके से रहना है, वही सादगी से रहना है, लेकिन बस आप कितने लोगों की ज़िंदगी बदल दी आप लोगों ने, करेक्ट ना? तो आदमी करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो हमें इनसे सीखना चाहिए, सादगी के साथ अपना काम करते रहें और जो दिल में दिमाग में जो है वो 100% करना ही करना है। 9 डॉक्टर, वो भी 9 में से 3 या 4 डॉक्टर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से निकले हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज राजस्थान का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद एसएम मेडिकल कॉलेज जोधपुर, उसके बाद अपनी बेटी की बहू को बीडीएस, अपने बेटे को, अपने भांजे को फॉरेन से एमबीबीएस, पूरी जिंदगी जो कमाया सब खर्च कर दिया सिर्फ एक चीज के लिए कि मेरा परिवार। इसीलिए समाज तभी बनेगा जब परिवार होगा। कभी कभी हम लोग ये गलत करते हैं कि हम दूसरों को ज़्यादा सुनते हैं और अपने को कम सुनते हैं। तो कृपया अगर अपनों को सुने, पहले अपना परिवार मजबूत करें। अगर आपका परिवार मजबूत है तो आप समाज में अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हो और ऑटोमेटिक सब चीज़ आपके अनुसार चलेगा। लेकिन अगर रिवर्स है तो प्रॉब्लम होगी। सो लेट्स लिसन टू डॉक्टर देवाराम जी। आज के प्रोग्राम में सभी पधारे हुए विद्यार्थियों, समाज बंधुओं, मैं डॉक्टर देवाराम देवासी, ग्राम पाचुंडा कला, तहसील सोजत, डिस्ट्रिक्ट पाली, राजस्थान। मैं पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार से सेवानिवृत्त पशु चिकित्सक हूँ। प्रिय विद्यार्थियों और सभी साथियों, जिंदगी में संघर्ष बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोगों के लाइफ में संघर्ष आता है। संघर्ष की कहानी मैं मेरे हिसाब से बताऊं, मेरी जो संघर्ष की कहानी है ये है कि मेरा जन्म 1957 में हुआ एक पशुपालक भेड़ पालक परिवार में। उस समय समाज में और परिवारों में शिक्षा का बहुत अभाव था और शिक्षा के प्रति जागरूकता भी नहीं थी। साथ ही साथ लोगों में ऐसी भावना थी कि एक कहावत थी कि अनपढ़ लोग तो गोडले चढ़ेला और पढ़ियोड़ा भीख मांगेला। ऐसी एक कहावत थी जिसमें लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे। तो मैं भी उसी व्यवस्था में था। तो गरीब परिवार के होने की वजह से मैं भेड़ों में जाता था, भेड़ चराने के लिए मेरे भाइयों के साथ। हम 5 भाई थे। तो उसमें मुझे थोड़ा, मैं जब
10-11 साल का हुआ तो मुझे थोड़ा आसपास से इधर एनवायरनमेंट से कुछ पता लगा कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो मैंने भी सन 68 में स्कूल में एडमिशन लिया। मेरे पिताजी को किसी ने समझाया बुझाया ऐसे किया तो मेरे पिताजी राजी हुए। हम 5 भाई थे तो क्या एक बच्चे को पढ़ा देते हैं, तो उन्होंने मेरे को स्कूल में डाला। मैं हर साल क्लास में फर्स्ट आता था, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं पढ़ाई करूं। और पढ़ते पढ़ते मैं 10वीं 11वीं तक पढ़ता गया, हर क्लास में फर्स्ट आता था। तो इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिला। तो 11वीं के बाद घर की स्थिति ऐसी थी कि आर्थिक दृष्टि से मैं आगे पढ़ने में सक्षम नहीं था। तो उसके लिए फिर मैंने कुछ नौकरी के लिए ट्राई किया। मैंने एक टीचर की नौकरी छोड़ी, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी छोड़ी। उसके साथ साथ फिर मैंने एक पशुपालन विभाग में कंपाउंडर की नौकरी छोड़ी। उसके बाद मैंने रोडवेज में कंडक्टर की नौकरी की। कंडक्टर की नौकरी करते समय मुझे थोड़ा बाहर का एक्सपोजर मिला, दुनिया में घूमने फिरने का, जिससे मुझे और कुछ पता लगा कि यार ज़िंदगी अपन बहुत पीछे हैं और अपने को कुछ और करना चाहिए। ऐसा करते करते मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि अपन कुछ और करें, जिससे मैं वापस कॉलेज में एडमिशन लिया। मैंने बीएससी किया। तो आर्थिक दृष्टि से मुझे परेशानी आती थी, तो उस वजह से फिर मैंने वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लिया। तो वहाँ भी मैंने अपने हिसाब से पढ़ाई के लिए जो फंड होता था वो मुझे खुद मजदूरी करके जुटाना पड़ता था। तो मैंने हॉस्टल में रहते हुए बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था में दूध बेच करके मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ऐसा करके मैं मेरा 4-5 साल जहाँ पर रहा तो उसका खर्चा निकाला और मैं अपने आप को आगे बढ़ाता गया। फिर मैंने कॉलेज में पास होने के बाद मैंने गवर्नमेंट में सर्विस की। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अपने परिवार में अपने को चाहिए कि अपन दूसरे बच्चों को सपोर्ट करें, जिससे कि वो बच्चे मेरी तरह कोई आर्थिक परेशानी महसूस नहीं करें। इस हिसाब से मैंने कोशिश की। तो मेरे परिवार में मैंने कम से कम 11 डॉक्टर मेरे सहित बनाने की मैंने एक सोची थी। तो उसमें अभी हम 9 डॉक्टर बन चुके हैं और 2 की अभी कमी है, वो भी पूरी हो सकती है, जल्दी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ज़िंदगी में आदमी को स्ट्रगल करना चाहिए, स्ट्रगल पॉजिटिव वे में होना चाहिए, जिससे कि आप सही जगह पे सही समय पर पहुंच सकें। मैं थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेट होने की वजह से मेरे को काफ़ी टाइम लगा मुझे अपने आप को संभालने में, परिवार को संभालने में। तो मैं आपसे कहूँगा कि भी आप अपने कम समय में जल्दी से कोई इधर उधर गोते नहीं खा करके जल्दी अपने लक्ष्य की तरफ पहुँच जाएं, जिससे कि आपको उचित समय मिल सके आगे बढ़ने के लिए। ऐसा मैं विचार रखता हूँ। मैं आज आपके सामने अपने कुछ जिंदगी के अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज का ज़माना काफ़ी जो हमारा समय था उससे आगे बढ़ चुका है और आप सभी को अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने इच्छा अनुसार आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, क्या नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए अभी से जो आपकी स्थिति है, जैसे मिडिल क्लास, सेकेंडरी क्लास और +2 में जब आप अपना आने वाले समय के लिए अपना रास्ता सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें
आपको कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। वो मार्गदर्शन आपको अपने इंस्टीट्यूशन से, कुछ अपने खुद के सेल्फ विजन से, जहाँ आप रहते हैं, जो आप करते हैं, उसको देखते हैं, दुनियादारी को, हमें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, आपके पेरेंट्स के अनुभव को चूज करें। और उसके बाद पहले सब्जेक्ट चूज किया, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, संस्था, कॉलेज, स्कूल, उसका क्या स्टैंडर्ड है, उसमें एडमिशन होने के लायक अपने आप को तैयार करें। सफलता अवश्य मिलती है। कोशिश में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखें। विद्यार्थी जीवन में एक लक्ष्य बना के आगे बढ़े। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं एक टिप्स देना चाहूँगा कि भी आपकी मेहनत और आपका जो प्रयास है वो तो है ही, इसके साथ साथ एक आध्यात्मिक प्रयास है जिसको मैं भी कई बार उसका उपयोग लिया हूँ, तो आप भी लेवें उसको। और ये है कि आध्यात्मिक में मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अपना जो माइंड है उसके दो पार्ट हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड है और एक अनकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड में 10% होता है और अनकॉन्शियस माइंड 90% होता है। ये आपको और भी कई सोर्स से मिलेगा और आप इसको थोड़ा स्टडी करना कि आप शाम को सोते समय जब आपको लगे कि भी मेरे को अब नींद आने वाली है, उसके जस्ट 5-10 मिनट पहले आपको ज़िंदगी में क्या करना है या क्या बनना है, उसके अनुसार आप अपने आप को उस लायक, अपने को खुद को उस पोस्ट पे, उस पोजीशन पे रख करके सोचें कि मैं ये चीज़ हासिल कर चुका हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो आपको कॉन्शियस माइंड में जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। उसके बाद सुबह जब आप उठते हो तो उसको आप बहुत जल्दी सुबह उठते ही पहले अपने ईश्वर को याद करो, भगवान को याद करो और थोड़ा उसके बारे में सोचो कि मुझे ये बनना है, मैं ये बन गया हूँ, मैं अभी इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपका एक आध्यात्मिक जो इनपुट है वो मिलेगा और उससे आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं वो हल हो जाती है और आपको जो भी इच्छित चीज़ें हैं वो आपको अचीव हो जाएगी। ऐसा मेरा आपको सुझाव है। इसके साथ साथ ही आप अपने थोड़ा बहुत सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले अपने इष्ट देवता को, अपने ईश्वर को याद रखें और पॉजिटिव माइंड रखें। किसी का बुरा सोचने की दिमाग में नहीं रखें। हर किसी को मदद करने की अपनी तरफ से जितना हो सके अपनी जो भी है, और हर किसी को तन, मन और धन, ये 3 चीज़ें एक बच्चे के लिए अगर किसी माँ बाप ने या किसी रिश्तेदारों ने अगर प्रोवाइड करा दी है तो वो बच्चा कहीं भी नहीं रुक सकता, वो बहुत आगे बढ़ सकता है। ऐसा और भी कई चीज़ें हैं जिसको समय समय पर हम बात करते रहेंगे। ऐसा हम सभी से मेडिकल हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑल, बट मैं खाली आप लोगों के लिए सिर्फ हार्डली 5 मिनट लूँगा, क्योंकि मेडिकल काउंसलिंग के लिए आप समाज में किसी आदमी के पास, मैक्सिमम लोगों के पास कहीं कहीं से मेरा नंबर लिंक से मिल जाएगा, तो आप मेरे साथ पास मैं अपने आप आपको काउंसलिंग कर दूँगा। मेरा सिर्फ आप लोगों को सिर्फ इतना सा बोलना है कि बच्चों के लिए सीरियस कब होना है। पेरेंट्स, माता पिता कुछ 5 मिनट बाद आपके साथ और बच्चों के साथ आप लोगों को अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए सीरियस कब होना है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीरियस पहली क्लास से ही हो जाना चाहिए कि हमें हमारे बच्चे को कौन सी स्कूल में डालना है। सभी पेरेंट्स सुनिए, अभी अगर आपके बच्चे यहाँ की किसी स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, सुनिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपके बच्चे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं तो वो ठीक है, वो बोर्ड है, लेकिन आप जहाँ तक हो सके उनको लार्जर एक्सपोजर देने के लिए उनको सीबीएसई में कन्वर्ट कराइए, क्योंकि सीबीएसई एक नेशनल करिकुलम है।
आपका बच्चा अगर यहाँ से राजस्थान या किसी भी दूसरे स्टेट में जाता है तो कॉमन सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो आप सीबीएसई में कराइए ताकि जितने भी बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं वो सब उनके साथ हैं। दूसरा, मेरे हिसाब से एजुकेशन क्या है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, द एजुकेशन इज एवोल्यूशन। Like we peoples are evolving. Maybe the old people and our Shastra doesn't believe that we came from monkeys. But I teach and I go into that particular process. I teach evolution to the students, and we have came from the large evolution, and that's why we became much more complex, much more developed. So education is important to evolve in this particular process. What is the use of evolve? Evolve will help you to adapt the new climate. So when over the next 20 years, the climate will get changed. I would like to say that अगर आपका बच्चा आज के टाइम में 10वीं पढ़ा हुआ है, अगर आप स्टूडेंट्स लोग ये सोचते हो कि हम 10th पढ़े हुए हैं, पेरेंट्स एक 5 मिनट और, मेरे घर के पास नियर टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के पास एक स्कूल है। अगर आप बोलो कि पैसों के दम पे अगर आप स्कूल में एडमिशन करा सकते हो धन के बल पर, तो मेरे ऑफिस के पास एक स्कूल है, उसका नाम है नेफल, नेशनल एकेडमी फॉर लर्निंग। कभी आप जाना वहाँ पे, आपको पता चलेगा कि पैसे की वैल्यू कितनी कम है। मैं आपको बोल रहा हूँ, नेशनल एकेडमी फॉर लर्निंग के ऑफिस में जाइए और बोलिए कि मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन चाहिए। आपको क्या बोलेंगे मालूम है? मदर एंड फादर बोथ शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट। मदर एंड फादर बोथ शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट। टोटल इनकम ऑफ फैमिली शुड बी मोर देन 20 lakh, एंड मदर, फादर एंड चिल्ड्रन ऑल थ्री शुड हैव पासपोर्ट। तो आप बोलते हो कि नहीं पैसे के नाम से सब कुछ कर सकते, नहीं, सब चीज़ पैसे से नहीं कर सकते। एजुकेशन आपको लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है। जब आप एजुकेटेड हो जाओगे ना, जैसे अगर एजुकेटेड होने का मतलब होता है कि अगर मुझे सब चीज़ लर्निंग करने में बहुत इजी लगता है, इट्स इजी टू लर्न। अगर कल के दिन आप मुझे बोल दो कि चलो आप बायोलॉजी के लेक्चर होकर मैथमेटिक्स पढ़ा दो, तो मैं बोलूँगा ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कल के दिन मैं पढ़ के कर लूँगा। लेकिन जब आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप लोग कितना खूब मेहनत करते हो उस धंधे को सीखने के लिए, क्योंकि आप सोचते हो कि यार क्या करो, पढ़ाई तो नहीं करेंगे, चलो कुछ लोगों से सीख के मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन वो प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाएगा इन बच्चों के लिए। तो आप लोग उस प्रोसेस को कम करने के लिए आप उनको एजुकेशन दे दो। एजुकेशन से वो लर्निंग सीख जाएगा, और लर्निंग सीख जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली वो जब जो चाहिए वो सीख सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने बच्चों को बिजनेस कराएं, लेकिन उससे पहले वो LLB किए होने चाहिए, MBE किए होना चाहिए, IIM पास आउट होना चाहिए। आपको पता है जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो भी तो बिजनेस है, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो भी बिजनेस है। व्हाट अबाउट देयर ऑनर? उनके मालिक पढ़े लिखे हैं। आपको वेरी सिंपल एग्जांपल, मैं एलन कैरी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। एलन कैरी इंस्टीट्यूट के 4 मालिक हैं, 4 माहेश्वरी ब्रदर। आपको क्या लगता है? देखो हमारे पास एक बिजनेस है, और बिजनेस के नाम पे हम बोलेंगे हमने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, चलो अब 10वीं बार पढ़े तो भी कोई बात नहीं, दुकान पे बैठा दो। तो माहेश्वरियों ने हमारी कंपनी को ओपन किया, और आप विश्वास नहीं करोगे, अपने 5 बेटों को, 4 भाई हैं, उनके 5 बेटे टोटल, 5 को बिट्स पिलानी दुबई से पढ़ाया। क्यों? कि तुम फॉरेन एक्सपोजर लो, ताकि जो आगे के टाइम में जो बिजनेस आएगा उसको तुम उस तरीके से हैंडल कर पाओगे। करेक्ट ना? जब टाइम चेंज होगा तो तुम पढ़े लिखे हो तो उस चीज़ को एडप्ट कर लोगे कि दुनिया कैसे जा रही है, मैं भी वैसे चला जाऊँ। आज का 10वीं पढ़ा लिखा बच्चा आज के 10 साल बाद अनपढ़ के बराबर है, अनपढ़ के बराबर है। तो मोबाइल की दुनिया से बाहर आके सच्चाई के जीवन में घुसना है। पढ़ाई, भाई कोई बोलता है कि चलो मैं मोबाइल से पढ़ लेता हूँ, सर मोबाइल में बहुत सारी जानकारी है। आप मोबाइल से न्यूज़ पढ़ो, और एक आप रोजाना जो रूटीन का न्यूज़ पेपर आता है उससे न्यूज़ पढ़ो, आपको मालूम चल जाएगा कि फ़र्क क्या होता है। मोबाइल से 2 मिनट में न्यूज़ पढ़ ली, जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी भूलोगे।
जितना स्लोली सीखोगे उतना लंबा चलोगे। तो रोजाना जो न्यूज़पेपर आता है ना घर में, उसको अच्छे से पढ़ो ताकि वो नॉलेज आएगा। वही नॉलेज करके उसके रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको वो बॉन्डिंग बनती जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है बुक्स पढ़ने का। आप किसी आदमी के साथ बात करके कुछ सीख सकते हैं, आप किसी मोबाइल के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उतनी सटीक नहीं हो सकती, और स्पेशली आज के टाइम में मोबाइल, वो इन्फॉर्मेशन इतनी सटीक नहीं हो सकती कि आपके काम आ सके। आपको काम वाली इन्फॉर्मेशन किताबें पढ़ने से ही आएगा, इसीलिए किताबें पढ़ने की आदत डालिए, पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि मेरा कल का जो समाज बने, और मैं बेंगलोर में ही रहना चाहता हूँ। आई डोंट वांट गो बैक टू माई होम टाउन, neither to जोधपुर neither to my village। और एक चीज़ आप लोगों के लिए भी, सारे आप लोग भी आ तो गए उधर से, लेकिन वापस नहीं जा पाएंगे, जाना यहीं पे। जब जाना यहीं है तो समय के साथ अपना आप एडप्ट। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम तो आ गए कुछ पैसे कमा के वापस चले जाएंगे, वो कोई हार्डली 0.01% होता है, बाकी तो हमें यहीं रहना है, यहीं बसना है। तो यहीं रहना है तो यहाँ का जो माहौल है उस हिसाब से बड़ी, जैसा जमाना है उस हिसाब से चेंज होते रहिए। पढ़ाई इसलिए करनी है जब आप एयरपोर्ट जाओ, जब आप बैंक में जाओ, स्पेशली गर्ल्स, पढ़ाई इसलिए मैं बोलता हूँ पढ़ाई करके जॉब करना एक सेकेंडरी, वो एक नीड है, समझ लो एक चीज़ है। मैं कल के दिन बिजनेस करूँ और अगर बिजनेस नहीं चले तो श्योरली मैं मेरी नौकरी पे वापस आ जाऊँगा, लेकिन कोई आदमी जो सिर्फ बिजनेस में बैठा और बिजनेस नहीं चला तो पढ़ाई बच्चों को इसलिए करनी चाहिए। मेरी जो बहन है मंजू देवासी, आपने सबसे पहले सुना होगा, वो एक पाँव से विकलांग है, एक पाँव से विकलांग है, और बीए का सबसे टॉप कॉलेज है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली, LSR, जहाँ से इंदिरा गांधी पढ़ी है। उसने अपनी डिग्री वहाँ से करी। हैंडीकैप होने के बावजूद दिल्ली जाना है, हॉस्टल में रहना है, पढ़ाई करनी है। उसके बाद MA करने के लिए जयपुर जाना है, जयपुर में पढ़ाई करनी है। उसके बाद जो बोलते हैं ना UGC नेट की तैयारी करनी है, उसके बाद GRF लेना है, उसके बाद लेक्चरर बनना है, और फाइनली CBDM तहसीलदार। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। आप पढ़ाई इसलिए करिए ताकि आप अच्छा इंसान बन सकें। पढ़ाई इसलिए करिए कि जब आप किसी और आदमी के साथ खड़े हो तो आपको लगना चाहिए कि आप मेरा स्टेटस और उसका स्टेटस बराबर है। आपको कभी एक चीज़ बोलूँ बच्चों, प्लीज़, जब कभी आप किसी अच्छे पढ़े लिखे के पास खड़े होंगे, और सही में आप 10वीं पढ़े लिखे होंगे ना, अगर आप नहीं पढ़ोगे 10वीं के पढ़े लिखे खड़े उनके साथ खड़े होंगे, आपको एक लगेगा, यू फील लोअर कि यार कुछ तो कमी है। And we would like to facilitate Shivendra ji. I think he is busy right now. He'll be present in the next session. Thank you, sir. Thank you so much. मैं हूँ तो कुछ नहीं, तुम हो तो कुछ नहीं, हम हैं तो सब कुछ हैं। अगर मैं अकेला जाऊँ, मैं सब कुछ कर लूँ तो कभी नहीं हो सकता। ये सब इन लोगों की मेहनत है। सच में इन लोगों ने पहले दिन से आज तक एक चीज़ नहीं बोली कि सर ये चीज़ करें, आपकी मर्जी है जो करो सर, जो लगना है लग जाएगा। और एक चीज़ सोचो, ये सब लोग बिजनेसमैन हैं, मैं जॉब करने वाला, बाकी सब, और ये UPSC की प्रिपरेशन करने वाले, और बाकी सब जॉब कर सकते। ये क्यों चाहते हैं आपके लिए एजुकेशन? क्योंकि वो उन लोगों के साथ रहते हैं, उनके मित्र हैं, जहाँ पे ये लोग अपना कुछ समय बिताते हैं, कभी कभी जाते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो बस इसीलिए जो इन्होंने फीलिंग किया उन्होंने वो आपको बता दिया। और यूनिटी में स्ट्रेंथ है, वो हमेशा माना जाएगा। जब तक समाज एक है तब तक वो डेवलप होता रहेगा, और एक दूसरे की सुनते रहेंगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अकेले रहेंगे तो सब अलग हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देवसी समाज में आने के लिए। मैं बहुत I am here from the 2007 I came here, did 3-year degree. Then I went to Tamil Nadu 2 years, I did post graduation. Then I did 1 year 6 months jobs in Bangalore. Then I went to UPSC preparation. Came back to Bangalore in 1 January 2015 से मैं यहीं पे हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ, और जब तक चाहूँगा मैं बैंगलोर में ही नौकरी करूँ। Thank you, team. Thank you, everyone. Now we will have a small 2 to 3 minutes.
So parents are requesting marketing support team by Savat Music Deepak Savat, who will help in coordination. A popular message which was passed through the entire community from Gajendra Ajmera and Dawla Chore. We are really thank you, sir. We are thank you for your message, valuable message, and we keep expectations from the same high on the note. So now it's a Q&A session. Anything? We don't have technical complete support who is going to guide you in the complete journalism and its process. And we request you to just provide your complete details. We will be contacting you and we will be providing the complete details to you. Yes, any other doubts? For after 10th, what can I need to become a great journalist or good journalist? As it completely depends on your goal and how you aspire and inspire. It's your choice. You can take any courses. You have multiple options. As yes. I have to do journalism. I have thought a goal and having a Arts cover mainly history and commerce. Mass communication. That's what it is. Anything. It may be either science, arts, commerce. It doesn't matter. Anything is fine. Yes. बाकी का क्या होता है बैकअप हम लोग सोचते रहे बहुत बार क्या होता है कि उसमें अगर सक्सेस नहीं हो तो फिर दिमाग में हो जाता है तो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं आपके क्या हुआ था जब So, I would like backup. ऑलवेज अवर बैकअप सिंपल एग्जांपल मैं एक बंदे को जानता हूँ वो अपने बेटे को कोटा मेडिकल एग्जाम के लिए तैयारी की वो बोलता है बेटे को करने दो उसने मैंने क्या करनी डॉक्टर बनेगा डॉक्टर डेंट में आएगा डेंट में नहीं आएगा आएगा तो आएगा नर्स में आएगा कुछ ना कुछ बनेगा आप Wrong way में गाइड करता है वो होता है कुमित्र. So it's very important the type of friend you choose in your life. Sumitra and Kumitra. The same way, Sumarg and Kumar. The right direction and the wrong direction. Why are we here today? We are here for the right direction, right? This is completely a educational plan. When it comes to the education, you must be very, what you call, prioritize your goals. It's very important. And when coming to choosing your friends, because we see a lot of people who spoil their life, it's because of their sangat, the type of people you choose. A good sangat will always help you to move forward and bring a great success in your life. Thank you. So anyone would like to ask any questions? Not just in academics, they help you to think critically, solve problems and make decisions, communicate easily and effectively, and work collaboratively and develop leadership skills. However, it is important to recognize that achieving greatness in life is not just about obtaining good marks or good academic achievements. True greatness is achieved by having a vision for your life and then working hard to make that vision a reality. One of the most important things that you can do to achieve greatness is to cultivate a love for learning. Learning is not just something that happens in a classroom. It can occur through experience, interaction with others, and self-reflection. When you approach learning with an open mind and willing to grow, you will find that knowledge and opportunities will come to you naturally. In conclusion, I urge you to remember that education and knowledge are the true keys to achieve greatness in life. They provide a foundation for success, but it is up to you to use that foundation to achieve your goals and dreams. So let us work hard. Be open to new experience and cultivate a love for learning. When we do these things, we can achieve greatness in all areas of our life. Thank you. So I'm always like my dad say or my father says that education, if you have education, what is the difference between you and a non-educated person? If you are educated, then at the age of 20 or 22, 23, you'll be well settled, you'll be having your own car, your own job, and you'll be well settled. But
the who don't have education, the person, it doesn't mean that he doesn't have, he will have, but the age of 40, 30, something like that. So you should choose now that you want at 30 age, your car, job and well-settled life, which you have to enjoy, or you have to be like, you have to get at 40, 50, whatever it is, at that age. So it depends on only you and your interest, education, whatever you have to take. And there is a thing, my teacher says that if you struggle for this 5 years, what you're studying, this 5 years if you struggle, you'll enjoy the whole life backside what you have. And if you enjoy now, you have to struggle the whole life. So it depends on you, you have to enjoy or you have to struggle right now and then enjoy afterwards. So I'll say right now, Samchali, thank you. And one more kind request I have, that example I would give that because most of the children are not getting that opportunity or cannot afford that higher education. So I would like to say देवासी समाज के जो भी हमारे प्रधान है अध्यापक जो भी ऑर्गेनाइजर है उनको मैं बोलना चाहूँगी कि आप जैसे उदाहरण के रूप में गौदान देते हैं वैसे ही बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ फंड मतलब एजुकेशन फंड के लिए कुछ ऐसा करें any scheme or any example like that, you have to, I would request to do it and help those children who are poor, who cannot afford the higher studies and cannot study, or make any Devasi Samaj school or college. So our new generation of Devasi Samaj who are staying in Rajasthan can't afford there or they are not having some good education right there, they can come here, stay in here and study and they can have a bright future. So our Devasi Samaj grows, the children grows and we feel proud as you have shown many examples. So like Atali, even they be inspired. और बहुत कुछ कर जाता है तो ये कंप्लीट में जो भी पेरेंट्स आज मौजूद हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी संस्थान से जुड़े हुए हैं इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है आप लोग जमीन लेते हैं भवन बनाते हैं मंदिर बनाते हैं बहुत अच्छी बात है आप कृपया करके आने वाली जनरेशन के लिए कुछ शिक्षा के लिए ज़रूर करें जैसे कोई शिक्षा फंड हो गया या फिर कोई भी स्कूल हो गई या फिर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन हो गया अस्पताल हो गई क्योंकि आने वाले समय में आप कुछ दे ना दें जमीन मतलब प्रॉपर्टी बच्चों के लिए मत छोड़ के जाइए अगर कुछ देना है तो एजुकेशन दीजिए और हॉस्पिटल की सुविधा ज़रूर दीजिएगा ये केवल यही एक माध्यम है जिससे आपका बच्चा आगे बढ़ सकता है और उसके जीवन में बहुत सफल रहेगा सो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी को एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट my patience and presence here today, and I would like to take this opportunity to thank our speakers who are physically present here and virtual speakers who took time out of their busy schedule to provide us with their wisdom and knowledge. And I'd also like to thank the parents on this busy Sundays where the business is really good, coming out here with the kids. Last but not the least, students, hope you have something to take from here. और आपके स्नेह सहयोग और समय के लिए थैंक यू वेरी मच प्लीज प्रोसीड टू हैव लंच